अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sayyid Shanila, your EVS teacher, and we are on the 11th unit, and the name of the unit is A Look Inside the Body. In the earlier videos, we had seen about the various cavities inside our body and about oesophagus. So what is oesophagus? Oesophagus is a pipe which is connected to the mouth and the stomach. Now we are going to study. Let's see. Do you know the journey of food in our body begins in the mouth? The internal organs in the abdomen help to digest it. The undigested, unwanted part is passed out through the anus in the form of feces. That is where the journey ends. See, we eat our food through our mouth. So, journey of our food मतलब खाने का रास्ता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से. The internal organs in the abdomen help to digest it. What helps to digest the food? हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है? इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो these internal organs help to digest the food we eat and which is stored in the abdomen. The undigested, unwanted part is passed out through the anus in the form of feces. That is where the journey ends. See, जो unwanted part रहता है, undigested मतलब सारा फूड, कुछ फूड डाइजेस्ट होता है, कुछ अनडाइजेस्टेड रहता है, कुछ डाइजेस्ट नहीं होता. तो जो अनडाइजेस्टेड होता है और अनवांटेड होता है, जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो कहाँ से निकलता है? एनस में, इन द फॉर्म ऑफ you can say wastage or latrine. That is where the journey ends. Food travels through a pipe-like pathway from the mouth to the anus. Food travels through a pipe-like pathway from the mouth to the anus. It is called the alimentary canal, and it is about 9 meters long. It is made up of a number of internal organs. We had seen that we eat food through mouth. हम मुंह से खाते हैं और वो मुंह से खाने के बाद जो जिस पाइप से पास होता है उसे ओइसोफेगस बोलते हैं. सो लाइकवाइज हमारे बॉडी में एक एलिमेंट्री कैनल भी होता है. फूड ट्रेवल्स थ्रू अ पाइप लाइक पाथवे फ्रॉम द माउथ टू द एनस. एक पाइप होता है जो माउथ और एनस को कनेक्ट करता है. इट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल. इट इज अबाउट 9 meters लॉन्ग. कितने लॉन्ग है? 9 meters लॉन्ग. इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. सो एलिमेंट्री कैनल जो होता है उसमें डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. द ओइसोफेगस इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. जो हमने ओइसोफेगस देखे, which is connected to the mouth and the stomach, that is also part of the alimentary canal. The heart. There is blood in our body, है ना? Blood is inside our body. We take in air when we breathe in. What do we take in while we breathe? We take in air. We take in oxygen while we breathe in. Our blood carries the air to all parts of the body. So how does air gets carried to all parts of the body? किसके थ्रू एयर हमारे बॉडी में पास होती है? ब्लड के थ्रू. The food we eat gets digested. It is again blood that carries the digested part of every particle of the food. It is again blood that carries the digested part of every particle of the body. For these purposes, it is necessary to keep blood flowing through the blood vessels that spreads throughout the body. It is the function of the heart to keep the blood flowing. So, it is again blood that carries the digested part of every particle of the body. मतलब blood हमारे बॉडी में एयर भी लेके जाता है to different parts, और digested food भी. digested part of जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो भी ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में पास होता है. फॉर दिस पर्पसेस इट इज नेसेसरी टू कीप ब्लड फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स that spread throughout the body. It is necessary for the blood to keep on flowing. You may have heard बहुत से लोगों के ब्लड क्लॉट हो गया, ब्लड पास नहीं हो रहा है, ये ऑर्गन से ब्लड पास नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा हुआ तो हमारे बॉडी में का एक आधा फंक्शन मतलब उसका फंक्शन रुक जाएगा, वो काम नहीं करेगा बराबर. तो इसलिए ब्लड हमारे बॉडी में हमेशा फ्लो होना चाहिए. इट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट टू कीप द ब्लड फ्लोइंग. सो व्हाट हेल्प्स टू फ्लो द ब्लड?
Heart does the function of keeping the blood flowing. The heart is an important internal organ. The heart is the most important internal organ. It is the center of the thoracic cavity. A little to its left. So heart is the part of thoracic cavity, which is to its left. थोड़ा सा लेफ्ट में. It is slightly bigger than one's fist. मतलब हमारी मुट्ठी से थोड़ा ही बड़ा होता है हमारा हार्ट. The walls of the heart too are flexible. हार्ट के जो वॉल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हार्ड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं. Now we are going to see two new terms. A new term, the heart contracts. What does heart contracts mean? The heart becomes smaller. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी साइज अपने आप कम होती है. द हार्ट रिलैक्सेस. द हार्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज. जब पंपिंग होती है ना ब्लड की तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर रिलैक्स होता है. तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी साइज कम हो जाती है. एंड व्हेन इट गेट्स रिलैक्स द हार्ट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज. मतलब वो जब रिलैक्स होता है तो वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाता. नाउ ट्राई दिस एन एक्सपेरिमेंट. टेक अ बॉटल मेड फ्रॉम फ्लेक्सिबल प्लास्टिक. मतलब आपको एक बॉटल लेना है विच इज ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, जो फ्लेक्सिबल हो, आराम से हम उसको मोड़ सकते हैं. टेक अ स्पेंट बॉल पेन रिफिल. मतलब यू हैव टू टेक अ बॉल पेन की रिफिल. स्पेंट बॉल पेन रिफिल, उसकी रिफिल लेना है आपको. मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लीड ऑफ द बॉटल. नाउ यू हैव टू टेक अ लीड ऑफ द बॉटल एंड मेक अ होल इनसाइड द लीड ऑफ द बॉटल. मतलब बॉटल के ढक्कन में आपको एक सेंटर में होल करना है. द रिफिल मस्ट फिट टाइटली इन द होल. नाउ यू हैव टेकन अ रिफिल. यू हैव टू इंसर्ट द रिफिल इनसाइड द होल ऑफ द लीड. आपको वो होल है लीड में, उसमें आपकी रिफिल जाना चाहिए. नाउ फिल द वाटर बॉटल विथ वाटर. वो जो बॉटल है आपके पास, यू हैव टू फिल इट विथ वाटर. फिट द लीड विथ द रिफिल टाइटली ऑन द बॉटल. नाउ यू हैव टू क्लोज द लीड ऑफ द बॉटल. Make sure that most of the refill is inside the bottle and only a short tip projects outside. Now what you have to do, आपको क्या करना है, ढक्कन बंद करना है बॉटल का. और आपको ध्यान रखना है कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, थोड़ा सा जो रिफिल हो वो बाहर निकला और बाकी पूरा पानी में डूबा हो बॉटल में. इट विल मेक इट easier to do this experiment. Now hold the bottle upright in both the hands. Now you have to hold the bottle in your both the hands as you can see in the picture. Press the bottle and then leave it loose. What you have to, हम पानी से उड़ाते ना पिचकारी से, वैसे पिचकारी के जैसा आपको पानी उड़ाना है. Do this 3 or 4 times. What do you see? When the bottle is pressed, water flows out in a jet. When you let it go, water stops flowing. So when you press the bottle, water flows through the jet. And water flows through the hole of the refill इन अ जेट. मतलब ऐसे स्प्रिंकलर के जैसा पानी बहेगा. हम पिचकारी को प्रेस करते थे जैसे पानी निकलता है, सिमिलरली वाटर विल फ्लो इन दिस लाइकवाइज. व्हेन यू लेट इट गो, हम जब प्रेस करते तो पानी बाहर निकला, और जब हम बॉटल को प्रेस करना बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग. सो वाटर स्टॉप्स फ्लोइंग व्हेन यू लेट गो द बॉटल. सो व्हाट डज दिस टेल यू? This tells us if pressure is applied to a lid in a closed space, the liquid will gush from wherever it finds a way out. So, sorry. This tells us if pressure is applied to a liquid in a closed space, the liquid will gush from wherever it finds a way out. जब हम लिक्विड को प्रेशर लगाएंगे, तो जब प्रेशर लगाएंगे तो वो बहेगा, और जहाँ भी इसको स्पेस मिलेंगी वो उसमें से निकलेगा. तो जैसे ब्लड, हार्ट में से ब्लड जब पंप आउट होता है तो ब्लड पूरे ब्लड वेसल्स में से फ्लो होता है. यही रीज़न है उसका, जब प्रेशर अप्लाई होता है तो. नाउ ट्राई दिस. प्लेस योर पाम अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ योर चेस्ट. यू कैन फील योर ओन हार्ट बीट. Now you have to place your palm to the left of the center of your chest. आपके सेंटर से थोड़ा लेफ्ट में आपको अपना पाम रखना है, आपका हाथ रखना है. सो आप क्या नोटिस करेंगे? आपकी हार्ट बीट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे. जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर लिसनिंग मी. हियर आई एम साइनिंग ऑफ.